Yeah, so first I'll just introduce Gujpro and Kuldeep. In that sense that we all know that Gujpro is a state level federation which has 30 FPO members and which was formed in 2014, 7-year journey which has been completed, and it is working in 13 districts and 45,000 plus farmers as members through the FPOs. And Kuldeep has been in the sector for several years. In fact, he was, even before Gujpro was formed, he was the CEO of Sajjata Sangh, which is a network of NGOs and which is the promoting agency for Gujpro. So Kuldeep was the executive director of Gujpro from 2012 onwards. I think he joined Sajjata from 2012, and then we had the Krushak month, which was the informal FPOs which were formed by the NGOs and others. That was formed in 2013, and then 14, the Gujpro was formed. So Kuldeep, that has been, you have been there since that. So I would like you to have, let us tell us about your journey so far, in yours and Gujpro's, which is kind of coinciding. Right. So if you can just tell about what has been the journey so far, and then we can go to the next one or two questions. Thank you, Sanjeev. So as Sanjeev told earlier, we started as an informal network of FPOs for Gujarat Rajya Krushak Manch. That was from December 2012 to since we registered this producer company in October 2014. So at that time, the trigger factor was the first MSP procurement that came through SFSE. In the year 2013, SFSE was appointed as one of the procurement agencies for government of India for procurement of pulses and oilseeds. So at that time, with just 4 FPOs, we were able to manage around procurement of around 55 crore rupees. That was around more than 15,000 metric tons or so. So that triggered, and we had this discussion though, should we just form this this association as a learning sharing platform and for capacity building, or this should come as a business entity. So overwhelming response from all the FPOs and the other stakeholders, it should be converted into a business entity. So we registered this as a producer company. So initially the producer companies we joined were mostly from our partner NGO, promoted by partner NGOs, like we had Kurshidan from DSC, then we had several producer companies from Kutch region. That was the first batch of producer companies that came in Gujarat under the Ford Foundation supported, I think, drought proofing program or so. And then we had producer companies from Saurashtra promoted by CSR Foundation. Those were members of Sajjata Sangh. And then the Reliance Foundation producer companies, all those became shareholders of this. So the initial business model, we all were inexperienced initially. That none of us had experience of business, and we also did not have much funding so that we could go for such kind of skilled people. But we did hire a consultant, business consultant, export consultant, and we did lot of interaction with the FPOs. We generated several trade leads from Trade India, India Mart, Exporters India. And but the thing was that the FPOs were not ready in terms of knowing what is the quality, setting the price. At that time, it was too premature. And then in 2000, I think I personally had this grip with this business called Mango, and I personally belong to a farmer family. So in Saurashtra region, we grow this groundnut. So out of that, I selected these 2 commodities initially, and most of our partners were located in this region. So we did some business activities. We associated with a private company. We did pilot in processing of groundnut, and then 1 year we marketed mangoes in Ahmedabad under different campaign, mango without makeup, and then next year we exported. Gujpro itself exported mangoes to UK. All these experiences were bad experiences, in fact, because we couldn't get the right quality of mangoes for export. Even the pack house we had to deport into a third party, which actually was the first time, was the largest pack house, but he was doing it for the first time. So initial 2 batch, he just destroyed it. And the type of selection of mangoes, those things we experienced. But it was a very good learning experience kind of thing. Now we are confident if we want to export mangoes, we really can export right now. And then this MSP thing came up in 2016-17 and in 17-18. So that was the major breakthrough in which we were able to involve many FPOs.
The good thing about MSP is like most of the FPOs could participate in the business activities of the federation, and they gained the confidence that they can even also work on scale. And they were happy, even though they got 1% commission, lot of problems, they were happy because they were able to serve their members. तो वहाँ पे एक आइडेंटिटी खड़ी होती है एफपीओ की, वैसे आइडेंटिटी नहीं होती उसके रीजन में. पर एमएसपी प्रोक्योरमेंट होता है तो फार्मर्स का इंटरेस्ट डेवलप होता है, पॉलिटिकल इंटरेस्ट डेवलप होता है, सबका इंटरेस्ट डेवलप होता है. सो दे कम एट सेंटर स्टेज. तो वो एक लाइफ का अट्रैक्टिंग फैक्टर है. एफपीओस उसके बोर्ड को भी काफ़ी वो अपीलिंग लगता है. तो अराउंड 43 करोड़ का ट्रांजेक्शन 16-17 में किया था. एंड देन आई फेल्ट द नीड दैट ऑर्गेनाइजेशन, I was not that, I am not from a business background or kind of thing, so I thought we needed a different kind of leadership. तो उस टाइम पे हमने एक कॉर्पोरेट बैकग्राउंड से एक सीईओ रखा था. 2017 में उसको रिक्रूट किया था. तो he had international exposure and all that thing. He came, but वो पीक पे तो पहुंच गया, टर्नओवर वो सब, but it backfired. So board wanted him out. तो फिर उसने फिर से बुलाया मुझे और उसने बोला कि we want him out, so you carry ahead, मतलब थोड़े टाइम के लिए. तो सिंस 2018 आई केम बैक. और बाद में हमने काफ़ी एम्बिशियस हो गए थे कि हाँ भाई हमारा एक्सपीरियंस हो गया था पीनट में, इतने स्केल पे काम किया था. तो वी टाइड अप विद अ कंपनी लार्जेस्ट एक्सपोर्टर पीनट्स में, एंड वी डायरेक्टली एंटर इनटू सेकेंडरी प्रोसेसिंग. जो ब्लांच पीनट है, फ्लेवर्ड पीनट्स है, तो उसमें हम एंटर कर रहे थे क्योंकि प्राइमरी प्रोसेसिंग ऑलरेडी कर रहे थे. एंड मीनवाइल ड्यूरिंग दिस 2 years वी ऑल्सो फैसिलिटेट दिस फेयर ट्रेड प्रोजेक्ट. तो 3-4 एफपीओस को हमने फेयर ट्रेड में रजिस्टर करवाया. फेयर ट्रेड्स का मूंगफली बेचा, अच्छा प्रीमियम लाया, $110 पर मेट्रिक टन. फार्मर्स खुश थे कई एफपीओस में. सो वी वांटेड टू मूव अ स्टेप फॉरवर्ड कि हाँ भाई इसमें तो अच्छा है और हम सेकेंडरी प्रोसेसिंग में जाता है. बट एक्चुअली दैट बैकफायर्ड और हमारा अभी करंट स्टेज में वो कंपनी ने डिफॉल्ट किया हुआ. रन 3 करोड़ का हमारा अभी भी आउटस्टैंडिंग रिसीवेबल्स है. और 17-18 में काफ़ी नाबार्ड के साथ भी टर्नओवर हुआ था हमारा अराउंड 150 करोड़ का, और पल्सेस में अराउंड 6 नाफेड के साथ. तो और वेयर हाउसिंग सर्विसेज भी हमने नाफेड को दी थी, तो उसका भी काफ़ी बड़ा वॉल्यूम्स में हमने काम किया था. बट 2019 में ये डिफ़ॉल्ट हुआ, उसके कारण हमारा जो ट्रेजेक्टरी है और फिर वी कुड हैव गॉट आउट. बट ये कोविड आ गया तो कंपनी भी, बैंक्स एंड ऑल द इन्वेस्टर्स मूव्ड आउट. तो तब से थोड़ा डाउन गया है. इन 1920 इट वाज 5.6 करोड़ एंड 2021 it went further down to 4.9. And current year we have reached 8 crores right now, and we will by March 2022 we will be around 18 to 20 crores. We plan to achieve a target of 30 crores, पर I think we will fall short. और बिजनेस मॉडल में भी काफ़ी हमने चेंजेस लाए उसके अंतर्गत, और पूरा जो हमारा सिस्टम से उसमें भी सुधार लाए. पहले सिर्फ ऑडिट एंड फाइनेंस एंड ऑडिट कमेटी ही एक्टिव थी. तो अभी रिसेंटली वी हैव फॉर्म दिस एडवाइजरी कमेटी, सेल्स एंड परचेस कमेटी है. फिर कुछ रिस्क मिटिगेट एस्पेक्ट पे भी हमने कुछ स्टेप्स लिए हैं कि कोई भी नई पार्टी हो, एक्सेप्ट फॉर लार्ज कॉर्पोरेट्स, वी वोंट टेक एन एक्सपोजर ऑफ मोर देन 20 लाख रुपीज़ एट वन टाइम. उसका पेमेंट के आने के बाद ही करेंगे. मिड लेवल की कंपनी है तो उसका 50 to 70 लाख का एक्सपोजर होगा, क्योंकि इसमें पेमेंट सिस्टम होता है 6 to 7 days, 8 days का उस हिसाब से. और बड़े कॉर्पोरेट्स है तो उसमें 100 टन प्लस भी हम जा सकते हैं. तो वो हम प्रोसेसेस सेटअप करके वो इम्प्लीमेंट करने की कोशिश कर रहे हैं. वी आर ट्राइंग टू गेट ऑन आवर फीट्स. द न्यू बिजनेस मॉडल्स विच वी हैव इंक्लूडेड एंड वी प्लान टू मेक इट एज अवर एंकर एक्टिविटी, सीड प्रोडक्शन एंड सेल. क्योंकि हमने देखा है कि आउटवर्ड मार्केटिंग से अच्छा है कि हम किसान को बेचें, वो ईजियर है. और उसमें जैसे कि एफपीओ लेवल पे भी हम देखते हैं कि आउटवर्ड मार्केटिंग इज ऑलवेज डिफिकल्ट, बट डूइंग बिजनेस विद योर फार्मर्स इज मच मोर ईजियर कंपेयर टू सेलिंग इट आउटसाइड. तो एक सीड प्रोडक्शन का हमने काम शुरू किया है. पीनट्स में है, मेज में है, और वीट में है. तो वीट में तो थोड़ा मैच्योर है. और साथ साथ में हम जॉब वर्क पे प्रोसेसिंग करवाते हैं, स्टॉक करते हैं, वेयर हाउस से फाइनेंस भी लेते हैं, पर्टिकुलरली फॉर सीड स्टोरेज नेक्स्ट सीजन में बेचने के लिए. हमको प्रोसेसिंग में जाना है, बट नाउ वी हैव डिसाइडेड दैट वी विल हायर अ प्रोसेसिंग यूनिट रादर देन सेटअप अ प्रोसेसिंग यूनिट. जॉब वर्क करवाए या फिर हायर करेंगे, प्रोसेसिंग यूनिट सेटअप करने की ज़रूरत नहीं है, क्योंकि इतने सारे प्रोसेसिंग यूनिट है हमारे पास, इतने सारे वेयर हाउसेज है. सो व्हाई नॉट हायर दोस प्रोसेसिंग यूनिट्स. एकदम आपका बिजनेस मॉडल एस्टेब्लिश होता है तो एक वॉल्यूम अचीव होता है, देन यू कैन गो फॉर सेटिंग अप योर ओन प्रोसेसिंग
यूनिट। तो हमारा मेन प्रोडक्ट है ग्राउंडनट। दिस ईयर लास्ट ईयर ग्राउंडनट में पैरिटी का इशू था तो हम बिजनेस नहीं कर पाए। हमारा टारगेट था कुछ 8-10 करोड़ का, हम कर पाए 1.5 से 2 करोड़ का, क्योंकि एक्सपोर्ट में डिमांड नहीं था। ऑयल का डिमांड था पर हमारा बिजनेस तो दाने का था, तो उसमें ज़रा भी बिजनेस नहीं था। तो हमने सोचा कि वी विल ऐड वन मोर कमोडिटी, दैट वाज सोयाबीन। तो सोयाबीन इस साल ऐड किया है, और नया बिजनेस जो कमोडिटीज़ ऐड किया है चना और गेहूँ, तो उसमें हम ट्रेडिंग करते हैं। तो लास्ट ईयर तो 2 से 2,500 टन का ही हुआ था। इस साल वी आर प्लानिंग फॉर अराउंड 10,000 मेट्रिक टन इन wheat and chana. तो वो अभी तक ऐसा है। That actually you have almost put forward the second question that I was about to ask you. That as we saw in the case that there are believe that you have rightly kind of put it is that we see 2-3 challenges as we have tried to together put it in the case, is that there is high dependence on one product, and groundnut is about 71%. You have had about 300 crores turnover over 7 years, and out of that 92% is just MSP. So of the total 200 odd groundnut. Now, how do you plan? Because MSP is no longer there. Groundnut also you have faced issues from NAFED and VNKVC. So how do you plan to diversify? You have said seeds, but seeds alone, will it suffice to bring up your, because last year you have gone into a kind of, you made some losses because of this. So how do you plan, and what will be the business model that? In fact, what happens is like last year we went into a loss because of this delayed payment. मतलब वो पेमेंट आया ही नहीं, अभी तो लीगल केस चल रहा है, 3 करोड़ रिकवर करना है, नाफेड के पास से भी काफ़ी रिकवर करना है। तो कुछ पैसा तो आएगा नहीं, वो हमको पता है, बट इट्स इन द बैलेंस शीट बिकॉज इट्स इन लीगल में गया है। तो और दूसरा इंटरेस्ट बर्डन इज सो हाई कि लास्ट ईयर मैंने 40 लाख रुपए इंटरेस्ट में दिया, 40 लाख रुपीज, आउट ऑफ विच बिजनेस विच आई डिड वॉज ओनली कॉन्ट्रीब्यूटेड ओनली 10 लाख रुपीज, बाकी का 30 लाख जो मैं यूज़ नहीं किया पैसा उसका देना पड़ा। तो बात ये है कि दैट्स व्हाई आई रिक्वेस्टेड Samunati and they said that they within 2 days they will be sanctioning a long term loan of 1.5 crore and a mid term loan of 1 crore. But again the issue remains that how could ये जो interest burden है वो कैसे सब्सिडाइज, क्योंकि even if I earn at my full capacity, क्योंकि ऑपरेशन कॉस्ट एंड इंटरेस्ट कॉस्ट वो दोनों कैसे, तो उसके लिए हम अभी वर्कआउट कर रहे हैं मल्टीपल स्टेक होल्डर्स के साथ। बट जो ग्राउंडनट है तो बेसिकली वो तो एक एस्पेक्ट है, पर जो गुजप्रो बीइंग अ फेडरेशन, गुजप्रो की स्ट्रेंथ बिल्ड होती है उसके एफपीओ से। तो अभी मैं देख रहा हूँ कि ज़्यादातर जैसे कि इतना मेच्योर्ड एफपीओस जैसे कि एमपी में, महाराष्ट्र में, ऐसे गुजरात में नहीं है। द नंबर्स आर लो एंड इवन द स्ट्रेंथ ऑफ द एफपीओस इज ऑल्सो कंपेरेटिवली व्हाट वी से लो। अभी मैं 10 डेज की टूर में गया था मूंगफली खरीदने के लिए, क्योंकि मुझे एक्टिव करना था एफपीओस, क्योंकि एफपीओ एक्टिव होंगे, क्योंकि लास्ट ईयर वो एक्टिव थे, इस साल एक्टिव नहीं है। क्यों? क्योंकि ही इज इन्वॉल्व इन अदर एक्टिविटी। कुछ नया काम आ गया, दुकान का काम है, एक ही आदमी है, कोई नया प्रोजेक्ट आ गया बीसीआई का, तो उसमें वो बिजी है। एक एफपीओ जिसने कंपनी ने वो वेस्ट कलेक्शन का काम दे दिया जो सीएसआर ने, तो उसमें बिजी है, उसकी कैपेसिटी बहुत है, पेट्रोलेज भी अच्छा है। तो मैंने कहा कि एक साल काम कर रहे, दूसरे साल नहीं कर रहे, तो अभी मैं सोर्स कहाँ से करूँ? तो मैं ट्रेडर्स से भी मिलता हूँ, मल्टीपल ट्रेडर्स भी मैंने रखे हैं जिससे मैं माल ले सकता हूँ। आई कैन नॉट गो नील, क्योंकि अगर मैं सोर्स नहीं करूँगा तो काम, मतलब एफपीओ को कोई फ़ायदा नहीं है फेडरेशन का। और दूसरा कि पैट्रोनेज नहीं है एफपीओ में, क्योंकि एक लेवल पे हाँ भाई एक प्रोग्राम के अंतर्गत नाबार्ड में बने 3 साल मीटिंग्स की, फिर वो मीटिंग बंद हो गई, फार्मर का इन्वॉल्वमेंट बंद हो गया कम्प्लीटली। अभी मैं बोलता तुम प्रोक्योरमेंट करने जाओ, मैं उसको ट्रेन करता हूँ, क्योंकि ग्राउंडनट बहुत ही टेक्निकल कमोडिटी है, गेहूँ और सोयाबीन की जैसा नहीं है, बहुत सारे पैरामीटर्स देखने पड़ते हैं। तो वो जाता है तो फार्मर उसका ही शेयर होल्डर है, फिर भी उस पर ट्रस्ट नहीं करता, उसको ट्रेडर की तरह ही देखता है, क्योंकि ये नेवर बिन कम इन एनी मीटिंग, कंपनी के मीटिंग में आया नहीं है शेयर होल्डर। तो ये एक बड़ा फैक्टर है कि पहले तो कैपेसिटी बिल्डिंग की जरूरत है हर एक एफपीओ लेवल के, फार्मर का पैट्रोनेज कैसे बने। तो उससे अच्छा है, क्योंकि मैं उसके साथ ट्रेड करता हूँ, दैट ओनली पेज फॉर हिज सैलरी, मतलब तो उतने तक का ही ऑब्जेक्टिव कवर होता है। जब तक एफपीओ स्ट्रॉन्ग नहीं होंगे तब तक फेडरेशंस को स्ट्रॉन्ग करना एक्चुअली मुश्किल है, क्योंकि हमको मल्टीपल सोर्स से डिपेंड करना पड़ेगा, फिर मुझे ट्रेडर से लेना पड़ेगा काफ़ी सारा माल।
क्योंकि मैंने ले लिया 500 टन का ऑर्डर या फिर 1000 टन का ऑर्डर लेके एफपीओ नहीं सप्लाई कर पाएंगे तो कौन करेगा? सो आई हैव टू टेक फ्रॉम अदर सोर्सेज। तो ये कुछ चैलेंजेस है। और दूसरा कि वैल्यू एडिशन बहुत ज़रूरी है इफ़ द बेनिफिट हैज़ टू फ्लो। सो द रोल ऑफ द स्टेट फेडरेशन हैज़ टू बी इन द सेकेंडरी एंड टर्शरी प्रोसेसिंग। भले आपका मार्केटिंग में स्ट्रेंथ ना हो, बट यू शुड बी एबल टू प्रोड्यूस। जैसे कि प्राइमरी प्रोसेसिंग का रोल जनरली एफपीओ का होता है कि आप विलेज लेवल पे, तालुक लेवल पे करो, ताकि प्रोडक्ट को 100 किलोमीटर दूर जाना ना पड़े प्रोसेसिंग यूनिट तक, वहीं पे प्रोसेस हो जाए। और फेडरेशन का रोल है दे शुड परफॉर्म अ रोल ऑफ अ सेकेंडरी एंड टर्शियरी प्रोसेसिंग। जैसे कि अमूल मॉडल में बनास डेयरी कर रहा है कि भाई आइसक्रीम बना रहा है, दही बना रहा है, कोई भी बना रहा है, तो सेकेंडरी प्रोसेसिंग का रोल जनरली ये होता है। और दूसरा कि कमोडिटी फोकस, कि आपका मल्टीपल कमोडिटी, हमारे मेंबर्स 30 है, हमने ज़्यादा बढ़ाए नहीं है, क्योंकि मैं कहता हूँ बढ़ा के क्या फ़ायदा जब तक आप सर्विस ना दे पाओ फर्क को। तो एक का मेज़ की रिक्वायरमेंट का मेज़ का लिंकेज नहीं कर रहा है, कोई वहाँ से नॉर्थ गुजरात से बोल रहा है कि आप जीरो क्यूमिन का करो, मैंने कहा क्यूमिन का। आपके पास लिमिटेड कमोडिटीज़, आपका फोकस तो कमोडिटी पे होना चाहिए। आप मल्टीपल कमोडिटी करोगे तो सिर्फ ट्रेडिंग ही कर पाओगे, वैल्यू चेन पे नहीं काम कर पाओगे। तो ये सब इश्यूज के कारण हम सिर्फ फोकस एक ही रीजन में भी कर रहे हैं, बीइंग अ स्टेट लेवल फेडरेशन, बट फोकस इज ऑन 1 or 2 रीजन ओनली एंड लिमिटेड कमोडिटीज। तो मल्टीपल फेडरेशंस होने चाहिए, डिस्ट्रिक्ट या क्लस्टर फेडरेशन होने चाहिए, या फिर कमोडिटी फेडरेशन होने चाहिए। और हमने तो ये भी प्रपोज किया कि गुजप्रो शुड ऑल्सो प्ले अ रोल इन फॉर्मिंग क्लस्टर लेवल फेडरेशंस। तो और दूसरे प्लेयर्स को तो वो करेंगे तो वहाँ के एफपीओस को काफ़ी बूस्ट मिलेगा वो पर्टिकुलर कमोडिटी में वो करने के लिए। I think we have 5 minutes more probably. But just one last question I need to ask is that अभी जैसे आप देख रहे हो कि 10,000 एफपीओ की बात हो रही है, लेकिन वो प्राइमरी एफपीओ को काफ़ी कुछ ग्रांट और सुविधाएं मिल रही है। तो व्हाट डू यू थिंक शुड बी द रोल ऑफ द गवर्नमेंट, the state and the central government in promote, I mean in recognizing, because you all have provided a lot of capacity building support, hand-holding support to primary FPOs. But there is no support to Guchpro ever since it started, except for the 10 lakh rupees that you got from SFAC in the beginning. You have not received anything. And yet, there is a lot of expectation from a state level FPO, from the government also, from your members also, as you have put it. So what do you think should be the role of the state and the central government in supporting फेडरेशंस लाइक योर? सिंस मतलब 2018 तक 19 तक मुझे ऐसा कोई सपोर्ट की we did not require any kind of support because we thought that our business model was going to be sound, we were going in the right direction, we did not need any. But since this, that was a मतलब वो डिसीजन एरर था बहुत बड़ा हमारे लेवल से, वो जनरली होता नहीं है, बट इन फ्यूचर ऑल्सो विल नॉट मेक सच काइंड ऑफ मिस्टेक। पर ये है कि जैसे कि हमको क्या सपोर्ट चाहिए कि इन टर्म्स ऑफ लो इंटरेस्ट लोन्स, ओके, और काइंड ऑफ रिवॉल्विंग फंड विच कुड बी रीपेड। जो ग्रांट्स है तो ग्रांट्स की इतनी ज़रूरत नहीं है कि वी हैव गेन्ड सर्टेन काइंड ऑफ एक्सपीरियंस, एक लेवल का एक्सपीरियंस हमको हो गया। अभी जैसे कि मैं 14% पे इंटरेस्ट ले रहा हूँ, ये 2.5 करोड़, और दूसरा 1.5 करोड़ भी 14% पे, फिर नेप किसान से 1 करोड़ का 8 to 9% में होगा, और 2 करोड़ का है मैं वेयर हाउस रिसिप फाइनेंस ले रहा हूँ। टोटल मेरा एक्सपोजर इस साल का 7 से 8 करोड़ का है टोटल ओवरऑल होगा। तो मैं ये अपने पूरा जो ये अपना सीड का है, पूरा अपना ट्रेडिंग का मॉडल है, वो हम एग्जीक्यूट कर पाएंगे ओवर अ पीरियड ऑफ, क्योंकि ये डेट से अभी ये तारीख से लेके अगले नवंबर तक हो सकता है कि 30, 35, 40 करोड़ हमारा बिजनेस टर्न होगा। तो उसके लिए इतना वर्किंग कैपिटल और वेयर हाउस रिसिप फाइनेंसिंग की ज़रूरत होगी। तो वहाँ पे अगर इंटरेस्ट रेट में फ़ायदा मिले तो भी काफ़ी है, देन ऑल्सो आई विल कम इन प्रॉफिटेबल। इस साल भी मैं लॉस में जाऊँगा, एक्सपेक्टेड के 15 to 20 लाख होगा, नेक्स्ट ईयर में मैं प्रॉफिटेबिलिटी में जाऊँगा। तो क्योंकि ये बैड लोन्स इतना है। Do you think the risk management fund should be created for, especially for yeah, I had proposed for genuine cases. I think genuine cases अगर है after analysis such kind of और मतलब ये रिस्क फंड से फायदा हो सकता है कि कई बार ऐसा because today in the morning we saw that they had said about our this kind of a fund, credit fund is there, but risk management, because directors in Guchpro, even yourself, you have taken a personal loan. Now I think that's a very high risk kind of a thing that they have got into, because institutional loans there were people who were guarantors, but otherwise for the working capital many of the directors in Guchpro have taken loan on their own, becoming their own guarantors.
through their own assets. So that is, I think, दैट इज वन इशू लाइक कि आप 4-5 करोड़ का लोन ले रहे हैं तो गारंटर कौन बनेगा, क्योंकि आपका ऑलरेडी रिस्क में है ऑर्गेनाइजेशन, वो अल्टीमेटली इट विल कम टू द डायरेक्टर इफ समथिंग बैड हैपन्स, तो वो रिस्क कौन लेगा, वो साइन डॉक्यूमेंट कौन करेगा गारंटर पे। तो अच्छा है कि मेरे बोर्ड में 2-3 ऐसे डायरेक्टर है जो ये रिस्क को पहचान के भी साइन करने के लिए तैयार है, वरना ये इशू आता है क्योंकि हर एक डायरेक्टर साइन नहीं करेगा, और बीइंग अ सीईओ यू हैव टू साइन, देयर इज नो वे आउट, बराबर। तो ये एक प्रोड्यूसर कंपनी में एक डिज़ाइन में ये एक देखने जैसी है कि क्या हो सकता है, क्या बेनिफिट कर रहे हैं इवन बोर्ड मेंबर्स, तो वो तो है। हाँ, पर्सनल इसलिए हमने ये भी अभी बोर्ड में एग्री किया कि इफ एनी कोऑपरेटिव फेडरेशंस आर रेडी टू इन्वेस्ट इन गुजप्रो, तो हम 30% स्टेक गुजप्रो का वो कोऑपरेटिव को देने के लिए थे, दे शुड बी एक्चुअली गिव अस अ लॉन्ग टर्म लोन ऑफ अराउंड 3 करोड़ रुपीज फॉर 5 years, बराबर, इंटरेस्ट फ्री। एंड यहाँ पे 30% मतलब 30 lakhs का इफ मतलब हमारे ऑथोराइज शेयर कैपिटल बढ़ा के 1 करोड़ 1.25 करोड़ का करके वी कैन अकॉर्डिंगली मतलब एक डेट और इक्विटी दोनों का उसको वो कर सकते हैं, और 5 years में हम जो बाकी का अमाउंट है उसको रीपे कर सकते हैं। तो वो भी एक ऑप्शन गुजप्रो में रखा है ताकि ये हाई इंटरेस्ट लोन है मैं रीपे कर दूँ, कुछ मेरी लाइबिलिटीज़ है वो मैं क्लियर कर दूँ ये लोन से, एंड वी कैन अगेन मतलब गो ऑन द ग्रोथ पाथ। ऐसा है प्रॉफिटेबिलिटी पाथ, ग्रोथ पाथ पे तो मुझे कॉन्फिडेंट है कि हम जाएंगे, पर प्रॉफिटेबिलिटी में फिर से वो स्ट्रेस ना हो। Thank you so much.